دیتا ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، الحمدللہ یہاں کے نوجوان بھی دینے والے، جوان بھی دینے والے، ماں اور بہنیں بھی دینے والے، سب کے سب اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے ہیں۔ جو بھی دے رہا ہے اپنی دل و دماغ سے، اپنی محنت سے دے رہا ہے، اور یہاں کے علماء بھی الحمدللہ اس کام کو بڑی انجام دے رہے ہیں، اس کام کے لیے بڑی فکر کیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو ڈاٹن والوں، یہی محفل کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یہی محفل کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یہی محفل میں بیٹھ کر کے کوئی شرابی اور کوئی کبابی، یہی محفل میں بیٹھ کر کے کوئی گانے باز اور ڈرامے باز، یہی محفل میں بیٹھ کر کے کوئی آتنک باز اور کوئی کسی طرح کا بھی انسان ہو جائے، اگر اسی محفل میں بیٹھ کر کے اللہ کی رسول کی بات کو سن کر کے عمل کریں گے تو سمجھ جاؤ آپ کا جلسہ کامیاب ہے، آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہ بہت بڑا جلسہ کر لیے اور عمل میں کچھ نہیں آیا، جو سننا تھا سن لیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، تو میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کا جلسہ پھر وبال جان بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں میری بات اور میری محبوب کی بات ہوگی وہاں ہم اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر ان سارے مجلس میں بیٹھنے والوں کی سارے کی مغفرت عطا فرمائیں گے۔ کس نے کہا؟ اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ نے کہا جہاں میری بات ہو، جہاں میری محبوب کی بات ہو، جہاں قرآن و حدیث کی بات ہو، وہاں پہ میں اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔ جب تک وہ محفل ختم نہ ہو تب تک رحمت کے فرشتے جڑے ہوئے رہتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں۔ جب وہ محفل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ معصوم فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اے رب کائنات، آپ کے نیک بندے اور بندیوں نے ایک ایسی مجلس میں بیٹھی تھی جس میں آپ اور آپ کی محبوب کی باتیں اور تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں سے میں آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں سنو، جاؤ اس دین کی محفل میں جتنے بھی وہاں بیٹھ کر کے سن رہے تھے میں نے سب کی مغفرت۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں یاد رکھو ڈائٹن کے نوجوانوں، اگر یہی محفل کسی ڈانس اور ناٹک کا ہوتا میں اتنا تک کہہ سکتا ہوں کہ 5 منٹ نہیں 2 منٹ کے اندر پوری مجمع بھر جاتے پوری مجمع۔ مگر آج ہم مسلمانوں کی کمی ہے، آج ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ آدھا گھنٹہ سے پروگرام ابھی شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے، اتنا تک آدھا گھنٹہ وقت ہو چکا ہے، مگر پھر بھی ہماری ماں اور بہن اور ہمارے ایمان والے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ گھر سے نکلو اور آؤ نبی کی محفل میں، آؤ اللہ اور اللہ کی رسول کی بات سننے کے لیے، آؤ قرآن اور قرآن کی حدیث کی بات، قرآن اور حدیث کی بات سننے کے لیے، آؤ دین اسلام کی بات سننے کے لیے، آؤ اکابر علماء کی بات سننے کے لیے، آؤ بزرگان دین کی بات سننے کے لیے۔ ان کی بات ہوگی یہاں پہ جس رب نے پوری دنیا کو سجایا، جس رب نے 7واں آسمان زمین کو پیدا کیا، جس رب نے چاند اور سورج ستارے بنائے، جس رب نے ہمیں بنایا، جس رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سب مخلوق میں سے بہترین مخلوق اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان ہے۔ اللہ نے سب مخلوق میں سے بہترین مخلوق ہم سب کو بنایا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، آؤ گھر سے نکلو، نبی کی بات سننے کے لیے محفل میں آؤ، اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کی نبی کی بات سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے محفل میں آؤ سرزمین ٹائٹن میں آؤ۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ وہ محفل ہے جس میں بیٹھنا بھی ثواب، یہ وہ محفل ہے جس میں سننا بھی ثواب، یہ وہ محفل ہے جس میں آ کر کے تھوڑی بہت وقت لگانا یہ بھی ثواب۔ میرے دوستوں اس محفل میں ثواب ہی ثواب، تو ہم وقت کہاں گزاریں گے؟ بازاروں میں، گھروں میں نہیں میرے دوستوں، نہیں میرے بھائیوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ کے بزرگان دین، آپ کے علماء کرام، آپ کا مہمانان کرام الحمدللہ آپ کے اس دیار میں، آپ کے اس سرزمین ٹائٹن میں، آپ کے اس پروگرام میں شرکت فرمائے ہیں، تشریف رکھے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی پردہ میں بیٹھی ہیں، ہمارے مکتب کی بچیاں بھی بیٹھی ہیں اور ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں۔ اسٹیج میں ہمارے حضرت مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے امام صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں، اپنی ضروریات کو پوری کر کے پوری جلسے کی
ज़रूरियात को भी पूरी करते हैं और स्टेज में जलवा अफरोज भी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अगर इस जलसे में हिस्सा लिए हैं या न भी हिस्सा लिए हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। यह नबी का महफिल है, यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होती है। इस महफिल में बैठने से किसी को एतराज नहीं होता। इस महफिल में बैठने से अल्लाह खुश होता है, नबी खुश होता है। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, हम तो रातों रात दिनों दिन यूं ही गवा देते हैं। आज की रात इस महफिल में बैठ करके अपनी दिलो दिमाग की गंदगियों को साफ करने की कोशिश करें, अपने दिल की गंदगियों को साफ करने की कोशिश करें। इस महफिल में बैठ करके अपनी गुनाहों की फरियाद करें, अपनी गुनाहों की फरियाद करें। इस महफिल में बैठ करके आखिरत को याद करें, इस महफिल में बैठ करके कब्र को याद करें, इस महफिल में बैठ करके उस कब्र की अंधेरी घर को याद करें, इस महफिल में बैठ करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पहचाने। इस महफिल में बैठ करके मरने के बाद क्या होगा उस जिंदगी की बात को सुने, उस जिंदगी के बारे में फिक्र करें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार चीज को मौत की मज़ा चखना है। मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत वक्त ले रहा हूँ कि जितने भी हमारे ईमान वाले अभी तक घर में है, जितने भी हमारे माँ और बहनें भी हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द जलसागाह आने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना शाहिद साहब भी तशरीफ रखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार चीज को मौत की मज़ा चखनी है। यहाँ उलमा बैठे हैं, आप उलमा से मसला मालूम कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक हदीस पाक में है कि कब्र रोजाना 3 दफा हम सबको बुलाते हैं। कितना दफा हाथों को उठा के बताएं? 3 दफा हम सबको कब्र बुलाते हैं, रोजाना पुकारते हैं कि ए आदम के बेटे और बेटियों, ए आदम के बेटे और बेटियों, ए खौफनाक घर हो, मेरे अंदर अंधेरा है, मेरे अंदर सांप और बिच्छू है। अगर मेरे अंदर आना है तो अपनी आमाल को दुरुस्त करके आया करो। अगर मेरे अंदर सुकून चाहते हो तो अल्लाह और अल्लाह की नबी की हुक्म और तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारा करो। एक हदीस में है, एक दूसरी हदीस में है कि कब्र रोजाना 70 मरतबा ऐलान करते हैं। 70 मरतबा। हमारा रफी साहब भी है, आप पूछ सकते हैं, ये उलमाए किराम है। मैं कोई बहुत बड़ा कोई आलिम नहीं हूँ, बस जो हूँ टूटा फूटा हूँ, मगर मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह की बात, नबी की बात, दीन की बात, कुरान की बात, हदीस की बात पूरी जिंदगी भर यही पैगाम आवाम तक, यही पैगाम मुसलमानों तक लग जाए, वक्त गुजर जाए मेरा, यही चीज मैं चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार चीज को मौत की मजा चखना है। हम सब के पीछे में मौत लगी हुई है, हम सब के पीछे में मौत लगी हुई है, और हम ऐशो आराम के साथ घर में रोटी खाते हैं, ऐशो आराम के साथ घर में सुकून से सोते हैं, ऐशो आराम के साथ अपने खेत में जरूरियात पूरी करते हैं, ऐशो आराम के साथ अपनी दुकानों पे बैठ करके गप्पाबाजी करते हैं। हम ऐशो आराम के साथ चाय की दुकानों में बैठ करके सियासत की बातें कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, मलिकुल मौत किसी को पूछ करके नहीं आते हैं, सिर्फ अगर किसी को पूछ के आया तो मेरे महबूब को पूछ के आया, मेरे नबी को पूछ के आया, वरना मलिकुल मौत किसी को पूछ के नहीं आता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं अपने बंदों की 5 चीजों का इल्म अपने पास रखा हूँ। हदीस पाक बता रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया 5 चीजों का इल्म अपने बंदियों और बंदियों का मैं अपने पास रखा हूँ। किसी को इसका मालूम और इसका वक्त का तजुर्बा नहीं दिया हूँ। पहली बात उसकी मौत का वक्त, पहली बात मौलाना शाह साहब तवज्जो चाहता हूँ, पहली बात उसकी मौत कहाँ होगी, अल्लाह ने इसका इल्म अपने पास रखा है, किसी इंसान को नहीं बताया और कोई इंसान कह भी नहीं सकता है। नंबर 2, उसकी दफन होने का वक्त, उसके दफन होने की जगह, वो कौन सी जगह में दफन होंगे, कौन सी जगह में उसको दफन की जाएगी, या उसे कोई जानवर खा लेंगे, या नदी में फंसा दी जाएगी, या वो ऑक्सीजन के जरिए बिल्कुल कीमा हो जाएंगे, इसका इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 उसका रिस्क, अल्लाह उसको कितना रिस्क देगा, इसका इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे और बंदियों को कितना रिस्क देगा, इसका इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह किसी को नहीं बताया कि मैं तुमको इतना रिस्क दूंगा, मैं तुमको इतना रिस्क दूंगा, अल्लाह के पास इसका इल्म है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे और बंदियों को यह चीज नहीं बताया, इतना तक बताया कि मैं तुम्हारे रोजी का जिम्मेदार हूँ, मैं कितना दूंगा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं उसका इल्म अपने पास रखा हूँ। नंबर चार, उसकी उम्र कितनी साल होगी, कितनी साल जिएंगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इसका इल्म अल्लाह अपने पास रखा है। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, अल्लाह ने फरमाया है मैं अपने बंदे और बंदियों की उस चीज का इल्म अपने पास रखा हूँ। नंबर 5, वो अमल करेंगे तो अच्छे करेंगे या बुरे करेंगे, है मौलाना रफीक साहब, वो अच्छे करेंगे या बुरे करेंगे, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास रखा है। आपको मैं हदीस से साबित करके बताए, इस 5 चीज का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास रखा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप इस पे गौर करें। माशाअल्लाह हमारे जाबिर चाचा ने 50 रुपए इनाम दिए हैं, अल्लाह इनको जैसा खैर अता फरमाए। ये इल्म मौलाना रफीक साहब मस्जिद में, ये पैसा जो मेरे हाथ में आएंगे हम मस्जिद में वक्फ कर रहे हैं, जिसको भी देना हो आ जाए, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस 5 चीज का इल्म अपने पास रखा। जब अल्लाह ने मौत के बारे में अल्लाह अपने पास रखा है, मौत की इल्म अल्लाह अपने पास रखा है, रिस्क का इल्म अल्लाह अपने पास रखा है, मरने के बाद कहां दफन होंगे उसका रिस्क अल्लाह अपने पास रखा है, कितने साल जिएंगे उसका इल्म अल्लाह अपने पास रखा है, क्या अमल करेंगे उसका इल्म अल्लाह अपने पास रखा है। हम और आप किस जिंदगी पे हैं, किस मोड़ पे हैं, किस दहाने पे हैं, पूरी जिंदगी अपनी जरूरियात पूरी करने में लगा देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 5 चीजों का इल्म अपने पास रखा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बात को याद रखो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा हर एक जानदार को चखना है। आज अगर हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है, अगर आज आपकी बारी है तो कल हमारी बारी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो इस चीज को, मलिकुल मौत सबके पास आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप यहाँ से क्या पैगाम लेकर के जाएंगे? आप यहाँ से सोचें कि अल्लाह को याद करेंगे, हाथ को उठा करके बताएं, अल्लाह को याद करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। बताओ मेरे दोस्तों, बच्चे को स्कूल में, मकतब में नहीं डालेंगे, ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? बच्चे को स्कूल में, मकतब में नहीं डालेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, पहले बच्चों को दीनी तालीम सिखाएंगे, उसके बाद फिर दुनियावी तालीम सिखाएंगे। इंशाअल्लाह मकतब से जुड़े, मदारिस से जुड़े, उलमा से जुड़े, उलमा की इज्जत करें। यही वो उलमा है जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश, जिनकी फिक्र, जिनको जद्दोजहद से अभी घर घर में दीन फैल रहा है। यही वो उलमा है जिनकी बरकत से गांव में रहमत नुज़ूल होता है। यही वो उलमा है, ये नबी के वारिस हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्त में ज्यादा लेना नहीं चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इजहार आलम साहब तशरीफ रखे हैं और हमारे हाफिज मिनहाज साहब वो भी तशरीफ रखे हैं और हमारे हजरत मौलाना जहूर आलम साहब महमूदिया रंडाल वो भी तशरीफ रखे हैं। एक खुशी की बात यह है कि हमारे मिनहाज साहब तशरीफ रखे हैं। एक बात अर्ज करना है कि मैं अगर जिंदगी में इस तरह का प्रोग्राम कहीं पर भी किया हूँ तो वो हाफिज मिनहाज साहब आज हाफिज मिनहाज साहब के सामने में है। हाफिज मिनहाज साहब गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैंने अपने मदारिस से निकलने के बाद कई स्टेज हमें मिला है तो वो हाफिज मिनहाज साहब है। हाफिज मिनहाज साहब ने अपने बैठक में एक प्रोग्राम की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 की बात कर रहा हूँ और उस वक्त मेरी पढ़ाई हिफ्ज़ की चल रही थी, 15 से 17 पढ़ाई हिफ्ज़ कर रहे थे। आज वो हाफिज मिनहाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं चाहता हूँ कि हजरत की दुआएं मुझे मिले और जितने भी उलमा तशरीफ रखे हैं अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबके आने को कबूल अता फरमाए। एक वादा हमसे करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाथ को उठा करके बताएं। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए अजीज़ मोहम्मद जिशान सल्लल्लाहु को मैं नाते नबी पढ़ने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी खूबसूरत आवाज़ से हम सामईन को मुस्तफीज़